and a topic was given to him so that he could write anything that you knew about that topic on a given subject. So his write-up was examined critically by experts or some specialists in the field. And on the basis of his performance, he was given the job suitable for him. So this is how essay examinations started. But gradually, the practice was adopted by other countries also in the West. कुछ दूसरे लोगों ने जब देखा कि चाइना ने एक नई चीज निकाली और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो पब्लिक से ही कॉम्पिटेंट लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दूसरे देशों ने भी ये प्रैक्टिस को एडॉप्ट करना शुरू किया. फिर इस पर लोगों ने रिसर्च करनी शुरू की. एंड then somebody on the basis of research, he reported that 3 hours write-up by a person on a given topic is as reliable and valid as a 3 days write-up. And this is how 3-hour examination of a paper came into being. तो इस तरह से 3 घंटे का होता है. अब तो खैर बदल गया, कहीं 2 घंटे का भी होने लगा, कहीं और कम होने लगा, लेकिन ट्रेडिशनली ये 3 घंटे के पेपर ही हुआ करते थे. और नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यही ट्रेडिशन थी कि ऐसे एग्जामिनेशन 3 घंटे का ही एक बार में होता. तो इसका एक लॉजिक है. इट वाज बेस्ड ऑन अ रिसर्च फाइंडिंग. somebody conducted research on it and he found that 3 hours write-up is as valid and reliable as 3 days or 4 days write-up. So this is a little historical background. Then, and let us come to the meaning of essay question. What is meant by an essay question? It has been defined by a psychometrician. Essay question requires the respondent to compose an original response. This is an important aspect of it. One has to compose an original response in more than one sentence to be subjectively judged by a competent specialist in terms of its accuracy and quality. So this is the precise definition of an essay type question. And as you can see, it has 5 criteria. First is the response is composed, constructed, not selected. So this is one. This is perhaps the most important thing about it. The respondent has to, compose or construct an answer in terms of language. Running into, more than one sentence means it can be several pages, and it should reflect originality in its content and thoughts. So, and then it is to be evaluated by a specialist subjectively, because evaluation of essay type question is subjective, mostly dependent on the judgment of the specialist who evaluates it. And he evaluates the response in terms of its accuracy and quality. So these are 5 things, 5 factors which define an essay type question. Now we come to its characteristics. What are the characteristics of essay questions? In fact, no aspect of education has been criticized so much so far as essay type exams. सबसे ज़्यादा criticism अगर हमारे यहाँ हुआ तो सिर्फ essay type examination का हुआ, लेकिन फिर भी अब भी ये चल रहा है. यानी सबसे ज़्यादा criticize भी हम इसको करते हैं और इसको हम चलाते भी हैं. तो कोई तो खास बात इसमें है. It has been dominating the entire education system for centuries and still survives. तो कुछ तो ऐसा इसमें है जो जिसकी वजह से हम इसको चलाते हैं. ये उसमें बहुत सारी कमियां भी हम निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको चला रहे हैं, तो कुछ उसके अंदर जरूर है. और वो क्या है? This evaluates higher mental abilities like language ability, argumentation, verbal and written communication,
which no other method does. So this is the special characteristic of essay examination. ये कुछ ऐसी एबिलिटीज को इवेल्युएट करता है जो दूसरा कोई तरीका नहीं उसे इवेल्युएट करने। और फैक्ट ये है कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ not only further education but also intelligence. So when the response is written in terms of language, that makes a difference. So it develops communication. It helps in explaining the situation and organizing and summarizing the ideas, justifying or refuting arguments of others, and analyze any situation, interpret and convince others. So these are some of the characteristics of essay type examination which make it a unique tool to test abilities of students. Moreover, this is the type of examination for which students make intensive preparation. इसलिए ऐसा इसके लिए स्टूडेंट पढ़ता है, टेक्स्ट बुक पढ़ता है स्टूडेंट्स के लिए। बाकी के लिए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल गाइड बुक चल रही हैं और कोचिंग में भी लोग जाकर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए कि वो सब पढ़ते हैं। लेकिन एस्से एग्जामिनेशन के लिए टेक्स्ट बुक को डीपली पढ़ना पड़ता है, इसलिए इसके लिए प्रिपरेशन भी लोग ज़्यादा करते हैं। एक खास बात इसमें यह है कि दिस प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आदमी अपने तरीके से अपनी बात कह सकता है, दूसरे किसी टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है। बाकी सभी टाइप के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ लिमिटेशंस उनकी हैं। इवन यू नो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैव लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उनमें भी वर्ड होते हैं कि आप 50 वर्ड में लिख दिए, 25 वर्ड में लिख दिए या 60 वर्ड में लिख, लाइक दैट। लेकिन इस पर कोई किसी तरह का, हालांकि आजकल जो कुछ इसमें भी एस्से एग्जामिनेशन में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन कैप लगाने लगे कि 250 वर्ड 300 वर्ड लाइक दैट होने लगा। लेकिन इवन देन ये एक फ्रीडम एक्सप्रेशन का एक टूल है। ए पर्सन कैन आर्ग्यू, इट प्रोवाइड द क्लू रिगार्डिंग हाउ द पर्सन हैज आंसर्ड द क्वेश्चन, व्हाट थॉट प्रोसेसेस वेंट ऑन व्हेन ही थॉट अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन। ये चीजें और किसी में नहीं मिलती। इससे पता लगता है कि जब स्टूडेंट ने या एग्जामिनर ने क्वेश्चन का आंसर किया तो उसने कैसे सोचा, क्या स्टेप्स हैं उसकी थिंकिंग के और क्या लॉजिक उसने दिया जिससे कि वो अपने उस पर पहुंच गया। और इसकी कुछ और खासियतें भी हैं, जैसे इट्स इजी टू प्रिपेयर। एस्से एग्जामिनेशन की क्वेश्चंस लिखना आसान है और इसका एडमिनिस्टर करना भी आसान है। बस आंसर बुक्स बांट दी जाती हैं, क्वेश्चन पेपर बांट दिया जाता है, द होल थिंग इज ओवर एंड देन स्टूडेंट्स राइट आंसर्स फॉर 3 hours एंड टीचर वेट्स इन द क्लासरूम एंड सुपरवाइज। यही होता है। तो जितनी आसान, लेकिन जितना ये इसका आसान है, और एक बात यह है कि इसको कोई भी पेपर सेटिंग कर सकता है, even if he doesn't he has not studied the subject। अगर उसने सब्जेक्ट न पढ़ा हो तो भी वो कर सकता है। और ये मैंने किया है कि मैं बताता हूँ कि मैंने कभी अपनी लाइफ में बायोलॉजी नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं बेसिकली मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री एंड पीजी लेवल में मैथमेटिक्स, तो बायो को भी नहीं पढ़ा। तो मुझे एक यूनिवर्सिटी से टीचिंग ऑफ बायोलॉजी का पेपर सेट करने के लिए आज, एंड आई वाज सरप्राइज कि क्या करूँ। देन आई कॉल्ड देम, मैंने उन्हें फोन किया और पूछा कि भाई ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है बायोलॉजी। देन ही सेड कि कुछ नहीं साहब, ये तो आप कोई किताब ले लीजिए, उससे कर दीजिए। मतलब एनीबडी कैन डू इट। आप किताब खोलिए, हर चैप्टर के एंड में कुछ एक्सरसाइज दी होती हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन पिकअप करिए एंड लाइक दैट यू कैन सेट ऐसे टाइप क्वेश्चन पेपर इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड दिस। तो इससे एक तो ये है कि पेपर इसका एडमिनिस्टर करना और इसका प्रिपेयर करना आसान है, बट एट द सेम टाइम इट इज डिफिकल्ट टू स्कोर। इसकी स्कोरिंग बहुत मुश्किल है। देखिए बाकी जो एग्जामिनेशन है जैसे मल्टीपल चॉइस है, उसके लिए तो मशीन स्कोरिंग भी है और मैंने की भी तैयार की जा सकती है। और
उसको वो भी स्कोरिंग कर सकता है जिसको सब्जेक्ट नहीं आता, बिकॉज ही हैज आंसर की विद इट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ऐसे एग्जामिनेशन के लिए, स्कोरिंग पर्पस के लिए आपको कॉम्पिटेंट एंड स्पेशलिस्ट चाहिए। ए पर्सन हु हैज स्टडीड दिस सब्जेक्ट डीपली, ओनली ही कैन स्कोर इट जस्टिफिएट। तो ये एक चीज है, ये डिफिकल्ट है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, इसमें टाइम लगता है काफी। और इसका एक फायदा ये है कि इसमें गेसिंग का कोई चांस नहीं। आई मीन नोबडी कैन राइट ए आंसर solely on the basis of guessing। सिर्फ गेसिंग के बेसिस पे कोई जवाब नहीं दे सकता, जबकि दूसरे जो टाइप की एग्जामिनेशन है उनमें ऐसा है। तो ये कुछ इसकी खासियतें हैं जिसकी वजह से ये चल रहा है। और स्टूडेंट्स की एबिलिटी पे इसका असर पड़ता है, जैसे क्योंकि उसे स्टडी करना पड़ता है तो स्टडी हैबिट्स डेवलप होती हैं। स्पेशली ही डेवलप्स ए हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी आल्सो। He goes to the library, discusses with friends, discusses with teachers, and that kind of activities he does, and it develops understanding of content। Content की समझ डेवलप होती है। तो ये ऐसे एग्जामिनेशन है, ये अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवन इवैल्यूएशन, ऑल द एबिलिटीज आर टेस्टेड बाय। ये सारी एबिलिटीज को टेस्ट करता है नीचे से ऊपर तक, नॉलेज से लेके और ऊपर की इवैल्यूएशन तक। और क्वेश्चन बनाने पर हालांकि डिपेंड करता है, आदमी किस तरह के क्वेश्चन बनाता है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे एग्जामिनेशन से आदमी, जो स्टूडेंट है, जो एग्जामिनी है, वो अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्रेस कर सकता है। he can write answers in a novel way, he can express his originality, imagination। so कुछ ये these are higher abilities which are expressed through essay examination। It minimizes guessing, I told you already। And then there is one problem also which sometimes comes up: medium of instruction and medium of the question paper. If it is a examination of a conducted by a board of education, then it is said that if a question paper is printed in English, people say that it will benefit English medium students more than those studying from other media। तो एक ये भी कहा जाता है कि अगर इंग्लिश में छपा है तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनको ये हेल्प करेगा, वो उसको आसानी से समझ लेंगे। हिंदी में अगर छपा है तो इंग्लिश मीडियम वालों को इसको समझने में उसमें दिक्कत हो सकती है, या किसी दूसरी लैंग्वेज वालों को दिक्कत हो सकती है। तो उसमें रीजनल इश्यूज आते हैं, कल्चरल इश्यूज आते हैं और एथनिक इश्यूज आते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो इसमें आ जाती हैं। इसमें ट्रेडिशनली एक चीज और आती है, ये जैसा कि ये तो हम बता चुके हैं कि इसको मशीन से स्कोर नहीं किया जा सकता और इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए। इसमें एक चीज और होती है, इसको हमको समझने की जरूरत है। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ चॉइसेस मोस्टली in essay examination, and sometimes choice is open, like attempt, question paper is headed by a note: attempt any 5 questions selected from the given 10। इस तरह का होता है। just see what does it mean। and sometimes there is choices internal to the units। say unit 1 has 2 questions, examinee is supposed to attempt 1, and then again unit 2 also 2 questions, examinee has to attempt 1, and so on। So out of the given 10 questions, examinee has to attempt 5, 1 from each unit। so these are the 2 patterns which are being followed। इसको थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। in fact when we are giving open choice, attempt 5 questions out of 10, that means we are giving them not a single question paper, we are giving them 252 different question papers। this is because if out of 10 questions
252 different combinations of 5 can be formed. I mean, people of mathematics know it. This is a problem of combination permutations. So that means we are giving 252 different papers just by giving one open choice. And even if we give choice within the unit, one question from each unit, and if there are 5 units, even then we are giving them 32 different question papers. Now, the main issue is that when 2 students are attempting different papers in the same examination, because they have chosen different questions to answer, how can we compare their scores? How can we say that student A has scored better than student B when they have attempted different questions? And in a certain combination, if a student answers first, third, fifth, seventh, and ninth question, and the other one, second, fourth, sixth, eighth, and 10th question papers are completely different. Nothing is common. And even then we compare their performance. So this is an important issue which needs to be sorted out, which has been talked about. And then one more serious thing. Inter-scorer reliability is very low with high standard error of marking. I have used 2 terms here, reliability, inter-scorer reliability and standard error of marking. Let us discuss these things. When the same answer book is examined by several examiners, there is a wide variation in the scores awarded to the answer. हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, हम ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अलीगढ़ में अपने ही डिपार्टमेंट में. और देखिए उसमें हमने क्या किया कि 1 page written response, 1 page written communication was handed over to around 200 different examiners, more or less equal in qualification and experience, for evaluating and awarding marks out of 20. This is what we did. हमने एक पेज के एक आंसर को कॉपियां कराई और उसके बाद हमने 100-200 के करीब एग्जामिनर्स को अलग अलग दिया और उनसे कहा आप इस पर 20 में से मार्क्स दीजिए. You will be surprised to know lowest marks given by an examiner was 6 out of 20 and highest was 19. Now you can see the variation, 6 to 90. That means one examiner failed him, failed the candidate, and other examiner gave him 95%. So this is the variation in evaluating answer books, and this is a serious problem. And then essay examinations have high standard error of marking. We have to define this term. What is meant by standard error of marking? Same answer, same script, evaluated by large number of examiners and giving different marks, these marks will have a certain distribution. And it is assumed that this kind of distribution would be normal because examiners are equivalent, and therefore it is expected that distribution of marks awarded by them would be normal. Now, standard deviation of that distribution is technically known as standard error of marks. Standard deviation of marks awarded by a large number of examiners on the same script, same answer, is standard error of marking, because this is a measure of, variation of marking behavior of examiners. So this is one important idea.
which later on will be used in grading system. Now we come down to their limitations. We have a large syllabus, maybe sometimes 10 units or more. But because in essay examination, we cannot ask so many questions. At the maximum, 10, 12 questions can be asked, and student may be asked to, answer 6, 7 questions. So that way, we are not going to sample the subject matter, properly. In fact, whatever content is sampled by the question paper is not a representative sample of the entire course. So that means we have tested only a section of the curriculum, of the syllabus. So therefore, we'll say that we have reduced its content validity. So content validity is another term. Content validity means if a question paper is a fairly representative sample of the course from which it has been developed, then we say that it has a satisfactory or high content validity. Because in this kind of examination, number of questions is limited. नंबर थोड़े क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए ये जो कंटेंट वैलिटी एसए एग्जामिनर्स की अच्छी पुअर होती है, अच्छी नहीं होती, कंटेंट वैलिटी बहुत लो होती है. और कुछ दूसरे फैक्टर्स जो हम मेजर नहीं करना चाहते, इसकी कल भी इसका जिक्र आया था. कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारा पर्पस मेजर करना नहीं है, लेकिन वो इसमें आ जाते हैं. जैसे लेंथ ऑफ द आंसर, कितना लिखा. This makes a difference in scoring. स्टूडेंट भी ये सोचता है कि कम लिख के आए हो तो कम नंबर आएंगे, और अगर ज्यादा लिख के आओ तो ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा. तो लेंथ ऑफ आंसर is also makes a difference. Then ability to write sophisticated words. Sophisticated words अगर कोई लिखता है, नए वर्ड्स यूज करता है, यानी जिसकी वोकेबुलरी अच्छी है, that also indirectly impresses the examiner. Although testing the ability of spelling or vocabulary is not the purpose. And then readability. आंसर को पढ़ा जा रहा है नहीं. बहुत सारी कॉपियां हमारे पास, आप लोगों के पास ऐसी आती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके राइटिंग को आप पढ़ ही नहीं सकते, और फिर भी हम हम लोग करते क्या है, जब पढ़ते नहीं है तो हम उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते, कोई एग्जाम नहीं लगाता, और वो क्या करता है कि वो पासिंग मार्क्स के आसपास थोड़ा सा कोई स्कोर दिया और उसने छोड़. और अगर रीडेबल है ठीक तरह, अच्छी तरह से, तो फिर अलग ही होता है. तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटेनियस फैक्टर्स हैं, जिनको हम मेजर करना नहीं चाहते, लेकिन वो हमारे मार्किंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं. देन दूसरी बात, इसका जो स्कोरिंग है, इवेल्युएशन है, जिसको मार्किंग सिस्टम कहते हैं, ये बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं. और जो इवेल्युएटर है उसके पर्सनल ओपिनियन जो है उसकी आती है. Sometimes he may interpret the question differently than the students do. माने उसका इंटरप्रिटेशन सवाल का और हो सकता है, स्टूडेंट का और होता है, और ये बहुत बार होता है. स्टूडेंट अपने इंटरप्रिटेशन से लिखेगा और एग्जामिनर अपने इंटरप्रिटेशन से एग्जामिन करेगा, and that will put the student at a disadvantage. दूसरी जो साइकोलॉजिकल सेटअप है, आदमी का मूड है ना, स्टेट ऑफ माइंड है, ये सब चीजें असर करती है. जब when an examiner is in a happy mood, his scoring standard will be different than when he is not happy. So ये चीजें हैं, कुछ जो पर्सनल वेरिएबल्स हैं, ये सब इसको मार्किंग बिहेवियर पर असर डालते हैं. इवन कभी कभी ऐसा होता है कि शुरू में जब हम एग्जामिन करना शुरू करते हैं, फॉर सम स्क्रिप्ट्स वी आर स्लाइटली स्ट्रिक्ट इन मार्किंग, एंड देन ग्रेजुअली वी स्केल डाउन आवर मार्किंग स्टैंडर्ड. फिर बाद में
थोड़ा सा लीनियंट हम होने लगते हैं, ये होता है, और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ये साइकोलॉजिकल है ये प्रॉब्लम, तो ये चीजें भी इसमें हो जाती हैं। ओके, हेलो, यू सेइंग समथिंग? नो सर, प्लीज ओके कंटिन्यू ओके सर। ओके फाइन। एंड ऑल ऑफ यू प्लीज आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए। हाँ, आवाज आ रही थी किसी की। ओके, नो हाँ प्रॉब्लम। सर, एक मिनट एक मिनट, ये कोई प्रेजेंटिंग शुरू कर दिया है। हाँ, देन अच्छा, ओके, आपका देन प्रेजेंटेशन बंद हो गया है सर, एक जस्ट मिनट सर। कैसे बंद हो गया? हाँ, इन्होंने स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया है सर, आप दोबारा से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए सर। फिर खोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, पूरा नहीं बोलना पड़ेगा सर, सिर्फ प्रेजेंट कीजिए सर। वो जो स्क्रीन है ना सर, वो अभी आपकी दिख नहीं रही है सर, तो आप ओह, आई सी, दोबारा गूगल मीट में जाइए सर। आई सी, आई सी, ओके ओके ओके। डियर पार्टिसिपेंट प्लीज आप लोग बीच में प्रेजेंटिंग ऑन मत कीजिए, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आया? एक मिनट सर। नो सर। नहीं सर, नहीं आया? गूगल गूगल मीट में जाके थ्री डॉट्स को क्लिक करिए सर। अच्छा, वहां से, अच्छा, दोबारा पूरा शेयर करना पड़ेगा। हाँ ओके, ठीक है सर। आ गया? जी सर, आ गया, आ गया। अब आप अपनी फाइल खोल लीजिए सर। ओके, मैंने तो खोल लिया। वहां खुली कि नहीं खुली, देखिए। खुल गई सर, खुल गई। ऑल राइट, फाइन। तो लेकिन हम वहीं हैं जहां हम थे, है ना? जी बिल्कुल सर। limitations, we are discussing limitations, so we are there only now. अब हम स्टैंडर्ड ऑफ मार्किंग की बात करते हैं कि मार्किंग स्टैंडर्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। In fact, in essay examination, marking standard of an examiner is defined in terms of average marks awarded by him and standard deviation of marks. Just try to understand this point. You know, if there are 10 examiners examining same question paper, each having 100 answer books. Sometimes when enrollment is very large, we have to appoint so many examiners. If there are 1000 answer books and we have divided them randomly into the bundles of 100 each and handed over to 10 different examiners. Now, then they will all give their marks, and every examiner will have his own distribution of marking. Everyone will have an average marking, average mark given by him, and standard deviation of those marks. Now, mean marks given by a person and standard deviation of those marks is the measure of standard of marking by that examiner. Am I clear about it? देखिए, मैं फिर रिपीट करूं, किसी भी एग्जामिनर का हम मार्किंग स्टैंडर्ड कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो उसको जो कॉपियों का जो लॉट मिलेगा, उसमें जो मार्क्स, उसमें जो अवार्ड देगा, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा मार्क्स का। लोएस्ट मार्क्स भी होंगे, एक हाईएस्ट मार्क्स भी हो जाएगा। इस तरह से उसका देयर विल बी अ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स अवार्डेड बाय हिम, एंड दैट mean and standard deviation taken together define his marking standard. Now, because mean and SD for every examiner will be different, and therefore marking standard of every examiner will be different, and it will be measured in terms of mean marks awarded by him and their standard deviation. So this is how we define marking standard of examination in essay type examinations. Now, जब सबका मार्किंग स्टैंडर्ड अलग अलग है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते।
student का suppose one student's answer book is gone to examiner A, and another student answer book has gone to examiner B. Question paper is the same, subject is the same. Both the students studied in the same class, taught by the same teacher. सब कुछ एक, सिर्फ ये है कि एक की कॉपी एग्जामिनर ए के पास गई, दूसरे की एग्जामिनर बी के पास. And because marking standard of both the examiners is different, we cannot, technically compare the scores of both of them. हम ये नहीं कह सकते A has performed better than B or B has performed better. ये नहीं कह सकते. तो ये comparison possible नहीं. Comparison is possible only when both the answer books have been examined by the same examiner. अगर दोनों कॉपियां, दोनों स्क्रिप्ट उसी एक ही एग्जामिनर के पास है, तब तो आप कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज मार्किंग स्टैंडर्ड हैज बीन द सेम. ये थोड़ा सा है, और ये स्टैंडर्ड वेरी करता है. मार्किंग स्टैंडर्ड वेरीज फ्रॉम एग्जामिनर टू एग्जामिनर, फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ऑल्सो. देखिए, you know that 60% marks in mathematics do not have the same value for the parents as 60% marks in English or in history or in English. Marks also vary over institution. Marks also vary over time. Even if the examiner is the same, marks will vary over time. Today, and suppose a person examines half the answer books today. Out of 100, 50 answer books he examines today, and 50 after 10 days. The marking standard will change. Mean of both the equations and SD of both the equations will be different. So these are some of the limitations of essay examination. Comparability suffers. And because of this only, because comparison is not there, because of this reason, all employers and educational institutions conduct their own examinations for the purpose of making admissions and giving jobs. If there would have been, comparison, if there would have been no difference in marking standards, perhaps educational institutions would not have conducted their own examination, and employer would also not have conducted their own competitive examinations. So only because of that reason, competitive examinations have to be conducted by all employing bodies and all educational institutions. So this is another Then, one more weakness, essay examination encourages selective teaching and selective learning. Selective teaching by teachers and selective learning by students. Yesterday also we referred to this problem, so we will not go much into details. And especially when enrollment is large. जैसे हमारे यहाँ in India, enrollment is very large at school level and even at college level. And where evaluation of answer books, essay type answer books, takes a long time, which delays the result, declaration of results, and also disturb the new session. Admissions become late. And also some of the students miss employment opportunities because of delay in the examination. So these are also some of the limitations of essay type examination, because its evaluation takes time. Results are delayed. Subsequent sessions are also delayed, and many students miss the chances of admission to other institutions and courses, and also miss opportunities for applying. Then some personal biases like nepotism, casteism, these also come in. This you know. Yesterday also we talked about it. Moreover,
there is a chance that examinee can, resort to bluffing. Bluffing in the sense that for a long answer, if he has a good, language ability, he can write many irrelevant things in beautiful way. What we say is verbal jargon, and he can impress the examiner. So that kind of thing is possible in essay examinations. बहुत सारी अब एक चीज और देखिए, इसमें ये देखिए मार्क्स, if a student fails, is it that he alone is responsible for this? इस पर हम बात करें, वो अकेला उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई फेल हो जाए तो उसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं वो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस दोज मार्क्स, और जो एग्जामिनी और एग्जामिनर दोनों के कंट्रोल में नहीं होते। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे एक तो बहुत सारे इवेल्युएटर इवेल्युएट करते हैं और सबके मार्किंग स्टैंडर्ड अलग अलग होते हैं। एक तो ये बात, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि एग्जामिनर बदलने पर मार्किंग स्टैंडर्ड बदल जाता है और उसका भी मार्क्स पर असर पड़ता है। इसके बाद हालांकि ये क्रिटिकल थिंकिंग का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ये चीजें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद नेचर ऑफ द सब्जेक्ट भी असर डालता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के सवाल है, वो भी असर डालता है मार्क्स। ऐसे एग्जामिनेशन है, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, इस चीज का भी मार्क्स पर असर पड़ेगा। उसके बाद कुछ एग्जामिनी रिलेटेड वेरिएबल्स होते हैं, जैसे उसकी एबिलिटी, पर्सनैलिटी, फैमिली बैकग्राउंड, उसकी स्टडी हैबिट्स, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट एंड लेवल ऑफ मोटिवेशन। इस पे तो हम लोग रिसर्च करते हैं रोजाना कि भाई कितना मोटिवेशन लेवल है, पेरेंट्स कितना कोऑपरेट करते हैं, घर में एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीजें मार्क्स पर असर डालती है। एंड देन देयर आर एग्जामिनर रिलेटेड वेरिएबल्स। एग्जामिनर से रिलेटेड वेरिएबल्स भी हैं, जैसे क्वालिफिकेशंस की एग्जाम। हालांकि इस पे रिसर्च नहीं, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, एज, जेंडर, पर्सनैलिटी, जॉब सेटिस्फेक्शन, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, ये एग्जामिनर के वेरिएबल्स नहीं, ये भी उसके मार्किंग बिहेवियर को असर डालते हैं, और इन्हीं वेरिएबल्स की वजह से सब्जेक्टिविटी आती है। ये एक ऐसा एरिया है जिस पर रिसर्च नहीं, कि एग्जामिनर्स की जो अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी जो ट्रेट्स हैं, उनका उसके मार्किंग बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है, इस पर बहुत लिमिटेड काम है। हार्डली यू विल फाइंड एनी रिसर्च, बट दीज वेरिएबल्स इन्फ्लुएंस हिज मार्किंग बिहेवियर। देन देयर आर स्कूल रिलेटेड बिहेवियर आल्सो, टाइप ऑफ स्कूल, फिजिकल फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, स्कूल का स्कूल एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑफ द स्कूल एंड टीचिंग मेथड यूज्ड बाय द टीचर। इन सारी चीजों का असर पड़ता है। तो इसलिए सिर्फ अकेला एग्जामिनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद फाइनल रिजल्ट जब हम कंपाइल करते हैं ऐसे एग्जामिनेशन के बाद, तो हम करते क्या है कि हम रॉ मार्क्स को जोड़ ऐड करते हैं, ये जानते हुए कि हर एग्जामिनर का, हर सब्जेक्ट का मार्किंग स्टैंडर्ड अलग, यानी स्केल ऑफ मार्किंग अलग अलग है, फिर भी हम उनको ऐड कर देते हैं, और उसी के बेसिस पर स्टूडेंट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांट देते हैं, डिवीजन में। थर्ड डिवीजन फेल, सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन। तो ये सब चीजें हैं, और ये जो कट स्कोर्स है ना, जो हमने डिसाइड किए हुए हैं, ये आर्बिट्रेरी है। 33% पास मार्क्स, 45% सेकेंड डिवीजन, 60% फर्स्ट डिवीजन,
75% डिस्टिंक्शन। लेकिन इनका कोई स्टैटिस्टिकल या साइकोलॉजिकल बेसिस कहीं मुझे तो मिला नहीं। ये आर्बिट्रेरी हैं। जो भी ब्रिटिश सरकार हमको सिस्टम दे गई, उसी सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर लिया। पासिंग मार्क्स 33% 1947 में भी था और आज भी है। शायद अंग्रेजों ने ये सोचा होगा कि हिंदुस्तानियों के लिए 33% ही काफी है। उनके यहाँ नहीं है, उनके यहाँ बहुत हाई है। और देखिए, दिस इज इन ए वे एक कॉम्पिटेंसी कट स्कोर। जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं तो कॉम्पिटेंसी इज डिफाइंड एट 85% लेवल। कि जब कोई 85% क्वेश्चंस करेक्ट कर देगा तो कह देंगे उसने उसको कॉम्पिटेंसी हासिल हो गई, ही हैज अचीव्ड कॉम्पिटेंसी। तो ये भी कॉम्पिटेंसी ही है। हम 33% पे ही आदमी को मान लेते हैं इसने कॉम्पिटेंसी कर ली, उसको पास कर दो, अगली क्लास में ले लो। तो ये सब चीजें थोड़ी सी नए सिरे से सोचना चाहिए। क्या 33% या 36% is it a reasonably high cut score for declaring a candidate pass or fail? इसको हमें दोबारा सोचना चाहिए। Anyway, तो ये कल बात हुई थी कि ये सबसे खराब, सबसे पुअरेस्ट वे है कि आप मार्क्स को जोड़ दीजिए और उसके बेसिस पे परसेंटेज निकाल के बता दीजिए कितने परसेंट आपकी कॉम्पिटेंसी होगी। तो इनफैक्ट कंबाइन करने से पहले मार्क्स को एक कॉमन स्केल पे करना चाहिए। ये कल भी हमने ये बात कही थी। अब हम देखते हैं कि क्या हम कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकें था ऐसे एग्जामिनेशन में। एक तो देखिए, हम जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं एज टीचर्स, we start with certain verbs. वर्ब होती है, state, define, describe, interpret, explain, analyze, compare। ये कुछ तो थोड़ी सी लिस्ट है और बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। लेकिन इन वर्ड्स का अपना अपना मतलब होता है। Each word has a meaning. When you say state something, that means it has to be stated as it is in the book or as it is stated by somebody else. And when you say define, that means it has to be stated in very precise words. And describe means a little details. And interpret means culling out meaning in it. Every word has a different meaning. Describe means what happened. Describe the situation. Describe the scene. That's all. And explain means why. Why that happened. That also includes description as well as explanation. Why that happened. What happened and why it happened. So that way, these words have, action words have meanings, and students should be made clear about it. Student will write whatever he knows, irrespective of the word used by you or irrespective of the word, action verb used by the examiner. Student simply write what he knows. So this is one problem. Some kind of, like questions like explain this thing. This is not a proper question. Some kind of, specificity should be introduced. Then choices should not be given because it raises the question of irrelevance and comparison issues. And even University Grant Commission and other committees appointed by the Government of India on examination reforms have repeatedly recommended that choices should not be given in the examination at all, in the essay type question paper at all, not even within the. All questions should be compulsory. Moreover,
this is also suggested that we should avoid asking such questions for which answers run into several pages. 6-7 पेज में आंसर आए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उसको इवेल्युएट करने में दिक्कत होती है, और उसकी जगह 2-3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, दैट इज बेटर. And those short answers will give specific directions about what is required to the respondent. क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं होता कि आप स्टूडेंट से क्या चाहते हो, वो क्या लिखे, क्या चीज वो लिखे, क्या न लिखे. एक टॉपिक बहुत बड़ा होता है, उसमें से हम सब चीज नहीं पूछना चाहते कभी-कभी, और उसका एक हिस्सा हम पूछना चाहते हैं, तो उसको स्पेसिफाई करना चाहिए. यह है डिफाइन द टास्क क्लियरली. आप क्या चाहते हैं उसको क्लियरली डिफाइन करो. एग्जामिनर को टाइम पूरा दो कि ये जो ऐसे हमारा जो एग्जामिनेशन है, इसको स्पीड टेस्ट नहीं होना, कितना लिखा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए. इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि उसने कितना क्रिएटिवली लिखा है, कितना इमेजिनेटिवली लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है. इट शुड बी ए पावर टेस्ट, नॉट ए स्पीड टेस्ट. ज्यादा कितनी लैंग्वेज लिखी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं होना चाहिए. तो ये चीजें हैं. और ऐसे क्वेश्चंस को हम डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में रोजाना हमारे सामने वी हैव टू गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. हमें बहुत जगह जरूरत पड़ती है. हमको अपनी डेली लाइफ प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, प्रोड्यूस करना पड़ता है. तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो एग्जामिनेशन है उसको हम, और जो एग्जाम्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको लाइफ सिचुएशन से जोड़ा है. मैंने बुक से एज इट इज उठाकर हम ऐसे ना पूछें, रिलेट इट सम सिचुएशन विद सम सिचुएशन इन डेली लाइफ. तो ये चीज, ये सब करने के लिए एक्चुअली टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत होती है. वो उसको करना चाहिए. देन फॉर ग्रेडिंग डेवलप ए मार्किंग स्कीम फॉर ईच क्वेश्चन असाइनिंग वेटेज टू ईच कंपोनेंट. एक्चुअली जैसा कि शुरू में हमने बताया कि ये इसको इवेल्युएट करना बहुत मुश्किल होता है, इसको स्कोर करना मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. इसके लिए एक तो यह है कि इसकी मार्किंग स्कीम एडवांस में तैयार करनी चाहिए, खासकर अगर कोई लार्ज स्केल पब्लिक एग्जामिनेशन. और कुछ ऑर्गेनाइजेशन करती भी हैं, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. उनके यहाँ जो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनके लिए मार्किंग स्कीम डेवलप करने के लिए वो पूरा दिन लगाते हैं. इवेल्युएटर्स सिट टुगेदर, डिस्कस एवरी क्वेश्चन and its probable answers, and then develop a marking scheme giving weightage to each component of the probable answer. तो ये करके एक स्कीम बन जाती है. तो वो जो स्कीम है वो उससे इवेल्युएट इनको किया जाना चाहिए. तो हम ये बात साफ है कि ऐसे एग्जाम्स में कितनी भी बुराइयां हों, लेकिन हमें इसको रखना पड़ेगा, हम इससे अलग नहीं हो सकते. क्योंकि कुछ ऐसी हायर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं जो हम ऐसे एग्जामिनेशन के थ्रू ही टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे हम इनको टेस्ट कर सकते. इसलिए ये रहेगा. इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी लिमिटेशंस हैं, उनके लिए हम कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसकी कोशिश करनी चाहिए. और स्टूडेंट्स को भी देखिए, एक चीज हम उनको नहीं बताते, लाइक टेकिंग द टेस्ट, इसकी ट्रेनिंग कभी नहीं होती, इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए. कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन पेपर की रीडिंग में ही स्टूडेंट अपना आधा टाइम निकाल देता. टाइम बजटिंग एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. टाइम बजट होना चाहिए, हर क्वेश्चन पर आपको कितना टाइम देना है, ये स्टूडेंट को, इसकी ट्रेनिंग स्टूडेंट को होनी चाहिए, ये बताना चाहिए.
और बहुत ज़्यादा उनको ये भी समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क नहीं मिलते, रेलिवेंट लिखने से मार्क मिलते हैं, अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से हम इस सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं और एजुकेशन सिस्टम में ये फायदेमंद रहेगा। ये तो हो। अब आगे आइए साहब, अब हम सेमेस्टर सिस्टम पर आते हैं। क्योंकि हमने सेमेस्टर सिस्टम क्यों एडॉप्ट किया है, इसको हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों इसकी जरूरत पड़ गई। एनुअल एग्जामिनेशन पहले होता ही था, लेकिन अब तो सेमेस्टर सिस्टम सब जगह लागू कर दिया। पहले तो शुरू में कुछ यूनिवर्सिटीज ने लागू किया था, लेकिन अब तो यूजीसी ने इसको लागू करवा दिया है। और उसको एक वजह तो ये थी कि एनुअल एग्जामिनेशन में जब ईयर एंड में एग्जाम होता था तो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट मैटर हो जाता था और उसको रिवाइज करने के लिए टाइम बहुत कम होता था। एक तो ये प्रॉब्लम थी और इस वजह से उसका परफॉर्मेंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता था। परफॉर्मेंस पे इसका असर पड़ता था। कभी कभी स्टूडेंट जानता था कुछ चीज़ें तो भी नहीं लिख पाता था। और होता क्या है कि कोई चीज़ हमने अगर एक साल पहले पढ़ी है या सीखी है और एक साल बाद कोई हमसे उसका टेस्ट ले तो थोड़ा सा वो होगा, क्योंकि अनलेस इट इज पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। अगर हम रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना अगर इतने दिन से तो फिर वो परफॉर्मेंस पर उसका असर पड़ेगा। एक तो ये वजह थी कि बहुत ज़्यादा लोड एग्जाम के टाइम पे हो जाता था, जिससे बहुत एंजाइटी, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस हो जाता था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती थी, ये सब चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ ये होती थी, एक चीज़ उसमें एक और होती थी, जुलाई में जब एडमिशन होते हैं और वैकेशन के बाद स्टूडेंट और टीचर स्कूल में आना और कॉलेज में आना शुरू करते हैं तो बड़े रिलैक्स, अभी तो एग्जामिनेशन बहुत दूर है, मार्च अप्रैल में होगा, अभी बहुत टाइम है। मैंने एट द स्टार्ट ऑफ द सेशन टीचर्स एंड लर्नर्स फील रिलैक्स्ड, आराम से, स्लो कोर्स कवरेज। तो ये सब थे। इससे क्या होता था कि कोर्स जब पूरा होता था एंड में आकर उसको करते थे मार्च अप्रैल में। तो ये चीज मार्च अप्रैल के महीने ऐसे हो जाते थे कि बहुत हैवी एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं। बहुत हमने देखा कि अगर हम पूरे साल रेगुलर क्लास नहीं लेते तो मार्च अप्रैल में आके हम एक्स्ट्रा क्लास लेने को मजबूर हो जाते हैं और जो कोर्स बचता है उसको बहुत हरीडली जल्दी पूरा करते हैं। और स्टूडेंट फिर उसको समझता कम है, मेमोराइज ज़्यादा करता है, क्योंकि उसके पास एक साथ इतना कंटेंट उसके माइंड में हम भरने की कोशिश करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती बल्कि रोट मेमोराइजेशन करता है। तो ये चीज़ एनुअल एग्जामिनेशन में होती थी और इसकी वजह से होता ये था कि बहुत सारी जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशंस और भी बहुत सारी चीज़ें, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम ही नहीं होता। जैसे आपने देख रहा है कि इस साल तो बहुत नुकसान हुआ है। मार्च अप्रैल ही तो टीचिंग के इंटेंसिव टीचिंग के दिन होते हैं, डेज होते हैं, टाइम होता है, और उसी में लॉकडाउन हो गया। इस बार तो कितना नुकसान उसका हुआ है ये आप महसूस कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स के अभी कोर्सेज बाकी पड़े होंगे और सारे सब स्कूलों में ऑनलाइन सिस्टम चल नहीं रहा, तो इस बार इसका बहुत नुकसान हुआ है। तो ये जो एनुअल एग्जामिनेशन था इसमें इसके साथ ये सब प्रॉब्लम थी। फिर ये सोचा गया कि इसके लिए कुछ सोचना चाहिए, तो सेमेस्टर सिस्टम उसका एक वो वाया मीडिया निकाला गया कि सेमेस्टर सिस्टम किया जाए। लिटरली सेमेस्टर मीन्स 6 months। सेमेस्टर का मतलब लिटरली डिक्शनरी में देखें तो आप 6 महीने उसका मतलब, लेकिन हम यहाँ सेमेस्टर का मतलब 1/2 ऑफ एन एकेडमिक सेशन। एक जो एकेडमिक सेशन है उसके आधे को हम सेमेस्टर कहेंगे यहाँ।
here the academic session is divided into two equal half, दो बराबर हाफ कर दिए जाते हैं, each carrying out teaching work and conducting examination. वैसे अगर आप यूजीसी की स्कीम देखेंगे तो आप पाएंगे कि 90 days teaching and 10 days for examination in each semester, so total 100 days, 100 working days की बात कर रहे हैं, 100 days नहीं, 100 working days. एक सेमेस्टर को हम 100 वर्किंग डेज में डिवाइड करते हैं. इन 100 वर्किंग डेज में 90 days फॉर टीचिंग वर्क, एक्सपेरिमेंटल वर्क एंड एवरीथिंग, यानी कंटेक्ट आवर जिसको कहें, एंड 10 days फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन. ये दिस इज व्हाट इज सेमेस्टर मीन्स. एंड देन द सब्जेक्ट मैटर इन ईच पेपर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. Two meaningful part which should be self-contained, अपने आप में अलग दिखाई दे, well organized, internally homogeneous, उनको डिवाइड करना होता है. एक्चुअली आइडिया क्या था? आइडिया ये था, हालांकि वो प्रैक्टिकल में हो नहीं पा रहा, सोचा ये जा रहा था कि जैसे मान लीजिए कोई 2 साल का कोर्स है और उसके 4 सेमेस्टर होंगे, तो सोचा ये जा रहा था कि स्टूडेंट कौन सा सेमेस्टर पहले करता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ही मे गो फॉर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट. समहाउ इफ ही मिसेस एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर, किसी वजह से पहले सेमेस्टर में वो मान लो एडमिशन नहीं ले पाए, उसको सीट नहीं मिली या कोई और वजह थी, तो वो सेकंड में आ सकता है. ये था प्रोविजन, लेकिन ये प्रैक्टिकली इसमें डिफिकल्टीज है, क्योंकि बहुत सारे जो सेकंड सेमेस्टर के कोर्सेज ऐसे होंगे जिनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ कोर्सेज की नॉलेज जरूरी होगी, तो ऐसी जगह दिक्कत होगी. लेकिन आइडियली सेमेस्टर सिस्टम में यही माना जाता है कि 4 या 6 जितने भी सेमेस्टर हैं, कोई भी सेमेस्टर किसी वक्त भी आदमी कर सकता है. इस तरह से कोर्सेज को डिवाइड करना चाहिए. आइडिया ये है कि कोर्सेज को इस तरह ऑर्गेनाइज करें सेमेस्टर वाइज कि सेमेस्टर इंडिपेंडेंट हो और कोई कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जो सेमेस्टर पहले करना चाहे वो पहले करे, जो बाद में करना चाहे बाद में. ये इसमें था. और इसमें यह है कि अच्छा, इसमें टीचिंग वर्क भी अब इससे ये सोचा गया कि रेगुलर होगा, क्योंकि अब जुलाई अगस्त में स्लैकनेस नहीं होगी, क्योंकि दिसंबर में ही एग्जाम आ जाएगा और हर वक्त ऐसा लगेगा कि एग्जामिनेशन पास है. स्टूडेंट को भी ऐसा ही लगेगा, टीचर को भी ऐसा लगेगा. एंड एग्जामिनेशन विल बी ए पार्ट ऑफ लाइफ, डेली लाइफ, एवरी डे, बिकॉज continuous internal assessment is also an integral part of semester system. तो उसमें रेगुलर सेशनल टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट, ये सब रेगुलर होता रहेगा, असेसमेंट उसमें होती रहेगी. दूसरा ये इसमें सेमेस्टर में ये भी सोचा गया कि हम जो ट्रेडिशनल तरीका है सब्जेक्ट चॉइस करने का, जैसे साइंसेज में अगर जैसे साइंस साइड में आदमी गया तो उसकी चॉइस लिमिटेड है. जो मैथमेटिक्स पढ़ेगा वो बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता. हमारे टाइम में तो नहीं था, अब तो शायद कुछ हो गया है इंटरमीडिएट में भी. पहले जो बायोलॉजी पढ़ेगा वो मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेगा, जो मैथमेटिक्स पढ़ेगा वो बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा. एक कॉम्बिनेशन होता था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, दूसरा कॉम्बिनेशन होता था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. तो आप इधर जाइए या उधर जाइए. सेमेस्टर सिस्टम के साथ ये कोशिश की गई कि कैंडिडेट इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो. मैथमेटिक्स वाला चाहे बायोलॉजी पढ़ना तो वो पढ़ सके, बायोलॉजी वाले चाहे मैथमेटिक्स पढ़ना तो वो भी पढ़ सके. तो ये फ्रीडम हो और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को जो है वो यूज किया जाए. इससे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स और ज़्यादा उसमें हो जाएंगे. और इसमें जो करिकुलम है उसको थोड़ा ब्रॉड बेस्ड किया गया. कुछ मेन सब्जेक्ट हो गए, कुछ सब्सिडी सब्जेक्ट हो गए, इलेक्टिव्स हो गए, ये सब चीज़ें. तो ये सब चीज़ें पहले नहीं होती कि ये कंपलसरी है, ये इलेक्टिव है.
सारे कंपलसरी ही होते थे। तो अब ये थोड़ा सा ये सेमेस्टर सिस्टम में ये चेंजेस आए हैं। अब ये माना जा रहा है कि सेमेस्टर सिस्टम में यही कहा जा रहा है कि ये एग्जामिनेशन विल बी स्ट्रेस फ्री। एग्जाम का स्ट्रेस अब उतना नहीं होगा, फ्री तो शायद नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन तो चीज ही ऐसी है कि इसमें आदमी कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकता। इवन बिफोर इंटरव्यू, अगर कोई आदमी इंटरव्यू में जा रहा हो और जब वो बाहर बैठा है वेट कर रहा है अपने नंबर का, तब भी उसमें थोड़ी एंजाइटी हो जाती है। तो एग्जामिनेशन किसी फॉर्म का हो, उसकी तो नेचर ही ऐसी है कि थोड़ी बहुत एंजाइटी वो क्रिएट जरूर करेगी। और इसमें ये भी माना जा रहा है कि साहब एंजाइटी और अचीवमेंट का रिलेशनशिप बड़ा अजीब है। यानी बहुत ज्यादा एंजाइटी हो तो परफॉर्मेंस लेवल गिरता है, और इसलिए एक सर्टेन लेवल की एंजाइटी जरूरी है। तो एंजाइटी बढ़ने के साथ पहले अचीवमेंट परफॉर्मेंस बढ़ता है, उसके बाद जब एंजाइटी और ज्यादा बढ़ने लगती है तो परफॉर्मेंस गिरने लगता है। माने ये रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस, एंजाइटी एंड अचीवमेंट इज नॉट लीनियर, इट्स कर्वीलिनियर। ये कर्वीलिनियर रिलेशनशिप है। तो इसलिए, और जब इंटीग्रल पार्ट ये होगा एग्जामिनेशन, रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, तो एंजाइटी मॉडरेट होगी, बहुत ज्यादा कभी नहीं। और इसके बाद क्योंकि CCIE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ये इसका हिस्सा है सेमेस्टर सिस्टम का, तो इससे जो समेटिव असेसमेंट है उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि कंटिन्यूअस असेसमेंट बहुत सारे कंपोनेंट उसमें होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, और उनके बेसिस पे वो होती है, तो उससे रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, वैलिडिटी भी बढ़ती है। और इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनिंग बॉडी है उसका बर्डन भी कम होता है। एक साथ एग्जाम करना होता तो 2 महीने लगते थे साल भर में, और अब टाइम कम कर दिया, उसको 10 दिन में रिड्यूस कर दिया है। हालांकि 10 दिन में प्रैक्टिकली शायद नहीं हो पाता होगा, लेकिन जो एग्जामिनिंग बॉडीज हैं, UGC हैं, उन्होंने 10 दिन के लिए ईयरमार्क किए कि एग्जामिनेशन 10 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन वो टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा बहुत ज़्यादा लग भी गया। और अब ये माना जाता था कि सेमेस्टर सिस्टम से जो रोट लर्निंग की टेंडेंसी है वो डिस्करेज होगी, और इससे परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगा। अब देखिए सेमेस्टर सिस्टम को इंडिया में कैसे कब इम्प्लीमेंट किया गया, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आगे आई। इसमें सबसे पहले MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, 1950 में इन्होंने लागू कर दिया। उसके बाद 1967 मेरठ यूनिवर्सिटी ने किया। एक्चुअली मेरठ यूनिवर्सिटी उस साल शुरू हुई थी। मेरठ यूनिवर्सिटी started working in 1967. I was in the first batch of BSc in that university in 1967, and then AMU also started, Delhi University also started, and all have mixed experience. जैसे मेरठ का तो मुझे ईयर इसलिए याद है क्योंकि मैं खुद था उसमें। वहाँ तो ऐसा भी हुआ कि कुछ दिन चलाया, कुछ दिन नहीं कुछ साल चलाया, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हुआ, पहले लागू किया, फिर उसको कुछ सब्जेक्ट में चलने दिया और कुछ में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। जिसमें प्रॉब्लम्स आई उनमें डिसकंटिन्यू कर दिया। एंड सेम थिंग हैपेंड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैडम बुला इसको, हाँ, तो ये उसमें हुआ, पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ और कुछ ने किया। लेकिन एक चीज एक्सपीरियंस ये बताता है कि एक तो यूनिटरी इंस्टीट्यूशंस है, यानी जो टीचिंग यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ एफिलिएटेड कॉलेजेस नहीं है,
और कम एनरोलमेंट है, वहां सेमेस्टर सिस्टम ने काम ठीक किया, अब भी वो ठीक काम कर रहा है। लेकिन लार्ज एनरोलमेंट है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट होता है, तो फिर इस सिस्टम को, और ख़ासकर इसके जो दूसरे कंपोनेंट हैं, कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन, ये इनमें जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्राइटेरिया हैं, उनको करना बहुत मुश्किल होता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब बहुत होता है। और हालत ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो हमारे ऐसी हैं जिनसे 1000 कॉलेजेस एफिलिएटेड है। नाउ यू कैन सी 1000 कॉलेजेस का एग्जाम करना कितनी बड़ी सेमेस्टर सिस्टम में, और फिर 2 बार करना, एक ही बार मुश्किल हो जाता है एग्जाम करना उन लोगों को, तो अब वो 2 बार करना, तो ये सब प्रॉब्लम्स इसमें आ रही हैं। अब इसकी कुछ सैलिएंट फीचर्स हम अब क्या कहते हैं, एक तो यही है कि वर्कलोड जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और रिवीजन के लिए स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम उसमें मिलता है। स्टूडेंट रेगुलरली पढ़ते हैं, स्टडीज में रेगुलर रहते हैं, और जैसे पहले शुरू में स्लैकनेस रहती थी वो नहीं होती, अब सारे साल पढ़ाई होती रहती है। एक चीज़ इसमें और ऐड करने की कोशिश की गई है, इसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसा कि हम कह रहे थे ना कि साइंस साइड में बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसको सोचा गया कि नहीं, ये तो अब एक नई स्कीम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये यूजीसी ने लागू किया है। सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, शायद उनकी कॉल आ गई है, फौरन वो जुड़ेंगे। पार्टिसिपेंट प्लीज बी पेशेंट, फौरन अभी सर जुड़ जाएंगे। सुचिता मैम, सुचिता मैम। हाँ यस सर, बोलिए। हाँ, आप जरा चौहान सर को फोन कर दीजिए, उनको कहिए कि रीज्वाइन कर लें, वो शायद जो है उनका हैंग हो गया है, कुछ हुआ है, आप उनको फोन कर अच्छा दीजिए और कहिए कि रीज्वाइन कर लें। अच्छा, ठीक है सर।
हेलो, Yes, sir. आवाज You आया? are audible, sir. Audible, sir. Okay. All right. So shall I move a little backward? My slides. हाँ, yes sir. कितना थोड़ा, क्योंकि आपने कहा ना वो थोड़ा छूट गया है, देखते हैं। हाँ सर, आपकी जो Have you done this? कॉल आई बस उसके बाद से हाँ। छूट, उसी के बाद से छूट गया। ओके। तो ये Sir, इस we पर ही थे were थोड़ा on सा। the slide choice-based credit system. That slide was हाँ, there इसी तरह right, है, at बिल्कुल that ठीक है, time. उसी को डिस्कस कर रहे थे हम। Yes, sir. और मैं ये बता रहा था कि ये अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है और देखना है इसमें कैसे इसको रिफाइन करते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो यही है, दैट्स ओके। देन अब मैं क्रेडिट का क्या मतलब है ये मैं बता रहा था कि 4 क्रेडिट, अगर इफ समबडी अर्न्स 4 क्रेडिट्स, so that means he has cleared that course, that's all, it means nothing more than that. ये it's not a indicator of performance. क्रेडिट अर्न करना जो है परफॉर्मेंस का इंडिकेटर नहीं है, इसको समझना चाहिए। क्रेडिट अर्न किए किसी ने 4 क्रेडिट, इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसने वो कोर्स पढ़ लिया है पूरे टाइम के लिए, जितने टाइम का वो था, पूरे सेमेस्टर के लिए वो पढ़ लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। For performance evaluation, grade has to be given by the teacher. Performance के लिए तो ABCD जो तरीका है, and UGC has suggested grading pattern also. UGC ने एक 9-point grading scheme दी है इसके लिए। तो ग्रेडिंग तो एग्जामिनेशन जिस तरह से भी होगी उसके बेसिस पर टीचर देंगे। इसके बाद क्रेडिट अर्न्ड and grade earned, the combination of these two will decide final result. ये है इस चीज की। Credit earned alone is not a measure of performance level. एक तो ये समझना चाहिए। This simply shows that certain course has been completed by the student. He has earned 4 credit. If he has earned 8 credit, that means he has completed 2 courses of 4 credits each. But performance level is not indicated. परफॉर्मेंस के लिए तो अलग से ग्रेडिंग हो। चलिए आगे, इसका रिलेटिव वेटिंग का तो कल उसमें आ गया था, कहीं कहीं इंटरनल असेसमेंट की तरह चल रहा है। अभी भी अब तो यूजीसी चाहती है कि सभी इंस्टीट्यूशंस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को एडॉप्ट करें और परफॉर्मेंस को लेटर ग्रेड्स की टर्म में रिपोर्ट करें और जीपीए मैंने निकालें, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA का कॉन्सेप्ट यूजीसी ने दिया है और ये कहा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑल यूनिवर्सिटीज शुड अडॉप्ट, सबको अडॉप्ट करें। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा उसको पढ़ा है यूजीसी की स्कीम को, तो उनका कहना यह है कि ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, इससे इंटर इंस्टीट्यूशनल वेरिएशन खत्म हो जाएगा। मैंने एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जो स्टैंडर्ड का वेरिएशन है वो इससे नहीं होगा। क्रेडिट विल बी ट्रांसफरेबल, यानी उसमें ये होगा, मान लीजिए किसी ने आधा कोर्स एक यूनिवर्सिटी में किया और उसने मान लीजिए 10 क्रेडिट्स अर्न किए। नाउ व्हेन ही ट्रांसफर्स हिमसेल्फ टू अनदर इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट्स विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड, वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, वो उसके वहां के परफॉर्मेंस में ऐड। तो क्रेडिट्स आर ट्रांसफरेबल। ये भी यूजीसी कह रही है कि देयर विल बी ए यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स all over the international institutions, and our institutions will be comparable to international institutions. तो जो क्रेडिट्स हैं वो क्रेडिट अर्न इन इंडिया एंड क्रेडिट्स अर्न इन यूएसए विल हैव द सेम मीनिंग, वही चीज होगी।
तो जो इंटरनेशनल डिफरेंसेस हैं, जो कंपैरिजन नहीं होता था स्टैंडर्ड्स में, वो इससे पॉसिबल होगा। ये आर्गुमेंट इसमें दिया जा रहा है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। चलिए, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन इंटीग्रल पार्ट, ये तो हम कल भी कर चुके। एंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन द CBCS टेक्स केयर ऑफ द लर्नर्स एबिलिटी। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है तो कोई भी चॉइस कर सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो क्रेडिट, ये जो चॉइस बेस्ड सिस्टम है, इसमें एक तो यह है कि अपनी चॉइस के कोर्स ले सकता है कोई भी। 3 तरह के कोर्सेज रिकमेंड किए हैं: कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। हर एक के लिए 3 तरह के कोर्सेज हैं। कुछ तो कोर्स कंपलसरी होंगे और कुछ इलेक्टिव्स होंगे, वो चूज कर सकता है। एंड देन देयर आर कोर्सेज विच आर स्किल बेस्ड। अगर वो कोई स्किल करना चाहे, स्क्रीन ब्रॉडकास्टिंग लाइव, अरे फिर सर बंद हो गया। सर प्रॉब्लम है। हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, अक्षय कुमार सर ने प्रेजेंटिंग कर दिया था सर, तो आपको सर फिर से प्रेजेंट करना पड़ेगा। गूगल मीट में अच्छा, जाइए चलिए। सर, और 3 मैं फिर डॉट्स करता पे हूँ। क्लिक करके फिर से प्रेजेंट नाउ कर दीजिए सर। पार्टिसिपेंट प्लीज आप प्रेजेंट मत कीजिए। अगर आप एग्जिट करते हैं तो आप रीज्वाइन Yes, I'm कीजिए, doing प्रेजेंट नाउ पे मत क्लिक कीजिए। रिज्वाइन करूं? नहीं सर, अब आया क्या? आप करिए सर। अब मैं बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ। इज इट विजिबल? यस सर, यस सर, यस सर, विजिबल है। इट्स फाइन। तो मैं ये बता रहा था आपको कि 3 तरह के कोर्सेज इसमें होंगे नई स्कीम में। कुछ कोर कोर्सेज होंगे जो कंपलसरी होंगे, कुछ इलेक्टिव्स होंगे और कुछ स्किल बेस्ड होंगे। यानी होता क्या है कि अभी ये भी है कि अगर कुछ स्किल डेवलप करना चाहे जिससे कि वो डायरेक्ट जॉब मार्केट में जा सके, उसके लिए भी वो अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को देखते हुए वोकेशनल कोर्सेज ले सकता है। तो ये इसमें प्रोविजन है। और इसमें यह है कि परफॉर्मेंस ऑफ ए कैंडिडेट विल बी कंपेरेबल अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस एंड द क्रेडिट्स विल बी ट्रांसफर्ड। एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे में क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे। ये सब इसमें दिया है। और इसमें 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम भी रिकमेंड किया है। और उस जैसे सबसे हाईएस्ट ग्रेड विल बी O, आउटस्टैंडिंग O, then next lower will be A plus, excellent, then next lower is A, very good, then next lower is B plus, good, then next lower is B, above average, then C, average, and then P means pass, and then next is F means fail, and then ab means absent रहेगा, उसका भी एक ग्रेड। and then each grade have its grade point, and which start from 10 to 0. Outstanding grade has, O grade has grade point of 10, A plus has 9, and so on up to the lowest level. And lowest F has 0, P which is pass, it has 4. इसका मतलब 4 पॉइंट पर भी वो पास हो जाएगा, P हो जाएगा, और एब्सेंट वाले को 0। तो इस तरह से levels of performance have been defined in terms of grades, and their weightages have also been given by the UGC in their document published for choice based credit system. अच्छा, उसमें एक और है, here grade V shall be at least 50% marks. उसमें ये भी कहा है कि 50% हो तब ग्रेड बी दिया जाए, और बी प्लस में एटलीस्ट 55%, और उसके बाद फिर हायर
स्कोर पर जो है वो ए और ए प्लस और ओ ये होंगे। इस तरह से उन्होंने क्या कि बी के लिए कम से कम 50% हो, 50% से कम पर बी ना हो, ये दिया हुआ है। इसके बाद पूरा प्रोसेस उसमें डिफाइन किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। और सबसे पहले सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट होगा। देयर विल बी ए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज फॉर एवरी सेमेस्टर। अगर कोई कोर्स 6 सेमेस्टर का है तो 6 सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेजेस पहले कैलकुलेट किए जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दोज 6 SGPAs, the overall grade point average, cumulative grade point average will be calculated by the candidate, and on the basis of which his performance will be reported. ये सारा उसमें है। मैंने परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करने के लिए ये पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ। हर कोर्स के क्रेडिट होंगे और हर कोर्स में ग्रेड मिलेगा सेमेस्टर वाइज। उन क्रेडिट्स और ग्रेड्स के बेसिस पे सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट होगा। हर सेमेस्टर में जो ग्रेड पॉइंट जो सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज होंगे उनके बेसिस पे फिर क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कैलकुलेट होगा एट द एंड ऑफ द कोर्स आफ्टर 3 years, and that will be reported in the performance. Overall performance will be reported in terms of that cumulative grade point average, and which will be reported in the marks. तो ये सब है। ये उसमें दिया हुआ है पूरा। और जो इसकी डिटेल पढ़ना चाहें तो ये यूजीसी के वेबसाइट पर दिया हुआ है। करीब 20 पेज के आसपास का डॉक्यूमेंट है, वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको वो पढ़ सकते हैं। हाँ देखिए, ये इश्यूज एंड प्रॉब्लम, यही बात हम कर रहे थे कि लार्ज एनरोलमेंट जो है ये हमारे यहाँ की एक प्रॉब्लम है। और खासकर एफिलिएटिंग सिस्टम में जहाँ एक यूनिवर्सिटी से 1,000 कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं और 100 स्टूडेंट्स की क्लासेस हैं। यानी ये भी है कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए बैठने के लिए भी जगह नहीं है। तो वहाँ अगर हम ये उम्मीद करें कि ये सब इम्प्लीमेंट होगा तो थोड़ा सा क्या हो गया? हेलो, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, किसी ने माइक ऑन कर लिया, आप बोलिए सर। प्लीज बैक टू माइक। Rashida ma'am, kindly switch off your mic, please. Rashida ma'am, kindly mute your mic. हाँ सर, कंटिन्यू सर। बस एक 2 मिनट का भी और बचा, बस अब खत्म हो जाएगा। हाँ देखिए, एक तो लार्ज एनरोलमेंट है, इस वजह से भी थोड़ा सा हमें जो नई चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। सेमेस्टर सिस्टम हमने पहले ही बताया कि जो यूनिटरी इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IITs, IIM, इनमें तो ठीक तरह से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। सेमेस्टर सिस्टम भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और वो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन भी और ग्रेडिंग भी, क्योंकि वहाँ वो लोग सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी है उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या करें। और कुछ बिल्कुल ओवरऑल कहते हैं ना, ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ इनर्शिया, इंडिफरेंस, लेथार्जी एंड मीडियोक्रिटी। ऐसा होता है कि चेंज इज ऑलवेज रेसिस्टेड। जब भी चेंज की आप बात करोगे तो उसको लोग अपोज करेंगे किसी न किसी तरीके से, इंडिफरेंस रह जाएंगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो इस वजह कुछ ये चीज़ें भी होती हैं जिससे कि चेंज जो है वो नहीं हो पा रहा। लेकिन अब तो क्योंकि यूजीसी ने इसको कर दिया और सबको लागू करना ही है, सेमेस्टर सिस्टम भी लागू करना है और क्रेडिट बेस्ड आई मीन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को भी लागू करना है। लेट अस होप इट विल बी सक्सेसफुल in the years to come, and this is perhaps the last slide. और इसके जैसा कि सेमेस्टर सिस्टम के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं।
लेकिन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा है, इसलिए इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चाहिए. So that's all for today. Thank you all. Thank you, sir. Thank you very much, sir, for the informative session that you have just conducted, and everybody is very happy, sir. आप chat box में आप देखिए, हाँ सारे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, sir. Thank you so much, sir. Sir, एक चीज आपसे पूछनी थी, sir. हाँ बताइए. कि सर हमारे पार्टिसिपेंट्स बोल रहे थे कि असाइनमेंट अगर कुछ हो तो दे दें आप, सर. इसके लिए हाँ, आज के लिए और कल के लिए अगर कुछ असाइनमेंट है तो. और नहीं सर, असाइनमेंट यहाँ नहीं सर, व्हाट्सएप चैट जो हम लोग ग्रुप है ना सर व्हाट्सएप का, आप वहाँ डाल दीजिए असाइनमेंट, और मैं 1 घंटे के लिए खोलूंगा व्हाट्सएप चैट पे आप असाइनमेंट. आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है. हेलो. तो क्वेश्चन वगैरह अगर पूछने हो कुछ तो पूछ ले, तो मैं जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. हेलो. हाँ बताए. अगर कुछ किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आप आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. If you have any question, if you have any query, you can ask me. I ask the sir directly. Unmute कीजिए और पूछिए सर से. Hello. Yes, please. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Go ahead with the question, ma'am. This is not a question, Shivan. Actually, sir, good morning, sir. This is not a question, sir. Good afternoon. Actually, मुझे एक चिंता है. हर बार मैं चिंता ही आपके सामने रखती हूँ. चिंता ये है सर कि सेमेस्टर सिस्टम एंड चॉइस बेस्ड दोनों सिस्टम में स्टूडेंट्स को बहुत फैसिलिटीज मिल जाती हैं, और स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज एग्जामिनेशन एंड स्टडी दोनों के हिसाब से मिल जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत हो जाता है. एक तो प्रॉब्लम, देन सेमेस्टर में कुछ लोग बैकलॉग हो जाते हैं, कुछ पेपर क्लियर होता है, कुछ पेपर क्लियर नहीं होता है. जिसका नहीं क्लियर हुआ उसको ध्यान में रखना है. देन सबको रिकॉर्ड एंड प्रिपेयर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, सबका अलग अलग एग्जाम करवाना, ऑल दिस बिकम सो डिफिकल्ट एंड सो दिस थिंग ना बहुत हैफाजार्ड हो जाता है सर. देखिए यही तो मेरी लास्ट स्लाइड में था कि ओवरऑल इंडिफरेंस. जी सर. और एक इसमें काम बढ़ेगा, हम लोगों को काम करना पड़ेगा ना इसमें. हम लोग टीचर हैं, हम लोगों को तो काम करने की आदत नहीं होती, तो इसलिए इसमें काम बढ़ेगा. इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं. तो यही प्रॉब्लम है. तो लेकिन ये धीरे धीरे ठीक होगी. देखिए हर चीज एक तरह से ऑर्डर में आती है ना, और जब वो लाइफ का हिस्सा बन जाती है तो हम लोग करने लगते हैं. जब भी कोई नई चीज आती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है एडजस्टमेंट में, और एडजस्टमेंट जब हो जाता है तो आगे काम चलने लगता है. तो धीरे धीरे ये सब ठीक होगा. और अब तो क्योंकि इसको करना है, यूजीसी हैज डन इट एक्चुअली, इंप्लीमेंट कर दिया इसको करना है ना, इसमें कुछ हो नहीं सकता. और इसके लिए थोड़ा सा ये ओरिएंटेशन भी लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा टेक्निकल है ये थोड़ा सा. अब बल्कि मैं एडवाइस करूंगा कि आप लोग इसका जो डॉक्यूमेंट है उसको डाउनलोड करिए यूजीसी के उससे, और पढ़िए कि इसको कैसे कैसे इसको करना है. सर मेरा रिक्वेस्ट है कि वो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो सर हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है इस FDP 5 डे सेशन का, उसमें प्लीज सर आप शेयर कर दीजिए, तो हम सब तक पहुंच जाएगा सर. ठीक है. अच्छा, मैं कर दूंगा. अगर है कुछ इस तरह का तो जरूर हम लोग को अवेलेबल कराइए. हाँ मेरे पास है, मैं कर देता हूँ. अच्छा एक चीज और बतानी थी आपको, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 आ गई है, आपको पता है कि नहीं? जी सर. तो उसको भी सब लोग पढ़ें, है ना, और देखें कि उसमें क्या नया है, और कंपेयर करें उसको थोड़ा, है ना. अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास आई है, किसी ने भेजा. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोफेसर परवीन उस्मानी. परवीन मैम प्लीज आप अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए. ओके, थैंक यू शिबान सर. गुड आफ्टरनून सर. आपका सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको मिली. मेरा क्वेश्चन है कि सम यूनिवर्सिटीज आर अनेबल टू कंडक्ट एग्जाम्स ऑन टाइम,
due to large number of enrollment, or there are various courses. Yes. So what would you suggest to overcome this problem? Because our teaching learning process also hampers due to this late examination system. देखिए, पॉपुलेशन को देखते हुए हमारे यहाँ अभी आप ये समझिए कि 2000 AD तक, यानी 20 साल पहले तक, हमारा जो GER था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, वो 10% से कम था, 10%, लेस देन 10% GER। GER का मतलब है कि student enrolled in the university divided by all young men of that age and multiplied by 100, ये होता है GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। यानी यूनिवर्सिटी में जाने वाले जितने टोटल पॉपुलेशन है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती है, 18 से 23 साल की एज वाले जितनी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से जो लोग यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट हैं वो कितना प्रोपोर्शन है। तो दैट वाज ओनली अराउंड 10%, लिटिल लेस देन, एंड नाउ द फिगर हैज गॉन अप टू 26। आप समझिए कि सन 1951 में तो बहुत कम था, 2-3% ही था, और उसके बाद 50 साल में 10% तक आने में GER को 50 साल लगे, और अब पिछले 20 साल में ही 10% से 26% हो गया। बहुत तेजी से एनरोलमेंट बढ़ा, उस हिसाब से फैसिलिटीज नहीं बढ़ी। एनरोलमेंट सबसे तेजी से बढ़ा है, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत कम बढ़ी है, एंड टीचिंग स्टाफ का नंबर भी उस रेशो में नहीं बढ़ा। तो इसलिए स्टाफ की कमी है, और जो भी स्टाफ है उसमें कई बार हम अखबारों में पढ़ते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में और स्टेट यूनिवर्सिटीज में नियरली 50% वैकेंसीज खाली है, मतलब पोस्ट खाली पड़ी, रिक्रूटमेंट नहीं होते। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऐसा कम्बरसम बना दिया है। 2011 में जो रिटायरमेंट हुआ था उसकी पोस्टिंग लास्ट ईयर हुई है यूपी में। अब आप सोचिए, ये चीजें हैं, इस तरह सिस्टम में चीज डिले होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। धीरे धीरे देखिए होगा। अभी तो यूनिवर्सिटी की स्कीम यूजीसी कह रही है कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं, रेपुटेड कॉलेजेस हैं, उनको यूनिवर्सिटी स्टेटस भी देने की बात हो रही है, जिससे कि वो अपना इंडिपेंडेंट कर सकें। होता क्या है कि जब 1,000 कॉलेजेस का एग्जाम एक यूनिवर्सिटी करेगी तो मुश्किल तो होगी ही ना। तो ये है, तो धीरे धीरे ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। जो अच्छे कॉलेज हैं उनको ऑटोनॉमस कॉलेज बनाया जाएगा, वो अपना एग्जाम खुद करेंगे, अपना करिकुलम खुद बनाएंगे, डिग्री यूनिवर्सिटी देगी। इस तरह से ये भी आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज का नंबर बढ़ेगा। हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए हमारी यूनिवर्सिटीज का नंबर कम है, हालांकि दुनिया में तो तीसरे नंबर पर हैं हम, यूएसए और चाइना के बाद हायर एजुकेशन में, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन को देखते हुए ये अच्छा नहीं है। माने वर्ल्ड एवरेज भी 26% है GER का हमारा भी, तो अभी हम वर्ल्ड एवरेज पर आए हैं, एवरेज से ऊपर हम नहीं गए। चाइना भी एवरेज से काफी ऊपर है एनरोलमेंट की जहाँ तक बात। तो अभी हमारे यहाँ जितने एस्पिरेंट्स हैं हायर एजुकेशन के, उतने हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। एक तो ये प्रॉब्लम है, और इसीलिए हमें जितने भी इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं उन्हीं में सब एस्पिरेंट्स को एकोमोडेट करना पड़ता है। एनरोलमेंट इसलिए बहुत बढ़ गया है, और इसीलिए एग्जाम में प्रॉब्लम होती है, टीचिंग में भी प्रॉब्लम होती है, ये सब होता है। धीरे धीरे ये ठीक होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका जो आपने जो बताया GRE 26%, मुझे तो कोरोना की याद आ गई कि कोरोना के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, डॉक्टर वही है, हॉस्पिटल वही है, वैसे ही स्टूडेंट का पॉपुलेशन बढ़ते चला जा रहा है, टीचर और कॉलेजेस उतने ही है। Anyways, if anyone else has a question, you can put up right now. सर शिवान सर, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। शीतल मैम है, हमारे फैकल्टी है सर हिंदी की, तो she wants to ask you a question. मैम प्लीज आप बोलिए। थैंक यू शिवान सर। सर आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार।
और बहुत बहुत साधुवाद सर आपको, आपने इतनी देर से बहुत ही बारीकियों को हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया और काफ़ी अच्छा लगा सर आपके इस लेक्चर को सुन के। इनफैक्ट कल का भी लेक्चर आपका बहुत पसंद आया सर। सर मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूँगी। आपने हमें बताया स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के दौरान जो होता है सर, तो ये सर मैं जानना चाहूँगी सर यहाँ आपसे कि यह जो एरर होता है तो एज एन एग्जामिनर और एज एन एग्जामिनी दोनों साइड से इस पर कैसे काम करना चाहिए कि इस तरह का एरर कम से कम हो सके सर? तो देखिए, ये तो क्योंकि एरर तो सब्जेक्टिविटी है। इनफैक्ट स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग इज ए मेजर ऑफ सब्जेक्टिविटी इन मार्किंग। तो ऑब्जेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। ऐसे एग्जामिनेशन को हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते और उसकी सब्जेक्टिविटी को भी हम पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सब्जेक्टिविटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और उसका तरीका यह है कि हम क्वेश्चंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, है ना। बजाय इसके हम ये लिखें कि डिस्कस दी एडवांटेजेस ऑफ ऐसे टाइप एग्जामिनेशन, हम कहें डिस्क्राइब 3 इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ। तो उससे क्या होगा कि अब 3 हो गया ना, तो उसके हम अलग अलग मार्क्स कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश कर सकते हैं। गिव 2 एग्जाम्पल्स, हम छोड़ देते हैं गिव एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल्स। अब हम उसमें स्पेसिफाई नहीं करते कि इलस्ट्रेशन के लिए हमें कितनी एग्जाम्पल देनी चाहिए। और अगर हम ये तय कर देंगे कि एक्सप्लेन योर आंसर विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जाम्पल्स, तो बात आ जाएगी। तो हमें मार्किंग में सहूलियत होगी। हम वेटेज कर सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दी है तो उसको कितने नंबर काट लेने चाहिए, 2 ही एग्जाम्पल इसने दिए तो कितने हम कम कर दें। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ा बहुत हम इसको इसमें कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड थैंक यू सर। हाँ, और इसका देखिए, इसका असर देखिए। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग का मतलब क्या है? हम ये मानते हैं कि जो ये सब्जेक्टिविटी है या जो मार्क्स हैं, ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस पर रिसर्च हुई है हमारे देश में। जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग है वो 5% से लेकर 7% तक है। यानी साइंसेज में 5% एरर है और आर्ट्स के सब्जेक्ट में जहाँ डिस्क्रिप्टिव बहुत ज़्यादा होता है वो 7% के करीब एरर है। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 आए हैं, एक एग्जामिनर ने दिए हैं, तो अगर उसकी कॉपी दोबारा दूसरे एग्जामिनर से कराई जाए तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसके मार्क्स 25 से लेकर और 55 तक कहीं भी आ सकते हैं। ये इसका स्टैटिस्टिकल मीनिंग है। यानी जब दूसरा आदमी देखेगा तो इतना वेरिएशन हो सकता है। उसके जिसके 40 एक ने दिए हैं, 55 भी दे सकता है दूसरा, और कहते हैं 25 भी दे सकता है। नहीं, इतना कम भी हो सकते हैं और उतने ज्यादा भी हो सकते हैं। और दैट स्प्रेड विल बी बाय चांस, वो बाय चांस है। तो चांस एरर है ये एक्चुअली जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मार्किंग है। तो इसको कम करने की जरूरत है और इसीलिए इसका वाया मीडिया क्या निकाला, रीएवैल्यूएशन करा। एक्चुअली रीवैल्यूएशन क्या है? रीवैल्यूएशन इज ए प्रोविजन टू गिव द स्टूडेंट्स बेनिफिट ऑफ चांस वेरिएशन। इन चांस वेरिएशन का हम बेनिफिट देना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बाई चांस भी वेरिएशन हो सकता है और इसलिए हम कहते हैं ठीक है रीवैल्यूएशन करा। तो चांस वेरिएशन का फायदा देने के लिए ये करते हैं सर। लेकिन सर री इवेल्युएशन में, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ हमने जो सुना था कि री इवेल्युएशन में अगर 10 मार्क्स का कुछ डिफरेंस आता है, जो ओरिजिनल मार्क्स मिला है और री इवेल्युएशन के बाद जो मार्क्स मिला, अगर 10 से ज्यादा का डिफरेंस आ जाता है और बच्चा फेल से पास या कुछ इस तरह का हो जाता है, 10 मार्क्स का मैंने जो सुना था, तो सुना है कि एग्जामिनी के ऊपर जो इवेल्युएटर है उसके ऊपर एक्शन हो सकता है सर, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये तो नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं है।
एक्शन किसी ऊपर नहीं होगा, होगा ये कि वो फिर थर्ड एग्जामिनर के पास जाएगी। ये ऐसे प्रोविजंस बहुत जगह हैं कि अगर बहुत ज्यादा डेविएशन हो जाता है तो हम ये मानते हैं कि किसी ने किसी दोनों में से किसी ने या तो अंडर मार्किंग किया है, ओवर मार्किंग की है, इसलिए हम थर्ड पर भेज दें। अच्छा, उसके बाद तो अपने एएमयू में और भी उसमें चेंजेस हुए कि रिवैल्यूएशन जब होता था तो एक से नहीं कराते थे, 2 एग्जामिनर से और कराते थे, और एक जो ओरिजिनल था उसको भी रखते थे, और तीनों का एवरेज लेकर मार्क्स तय करते। ये भी हो गया था बाद में। तो ये प्रोविजन भी अलीगढ़ में कर दिया था कि जो इवेल्यूएट कराएगा, रिवैल्यूएट, उसका कॉपी रिवैल्यूएशन के 2 के पास जाएगी, अलग अलग एग्जाम। सर यहाँ पे उन दोनों के मार्क्स और ओरिजिनल मार्क्स। ओके एक्सक्यूज मी सर, हाँ, हम लोग की यूनिवर्सिटी में एक बात और थी, रीटोटलिंग भी किया जाता था, कभी कभी टोटलिंग एरर भी हो जाता है। टोटलिंग एरर तो बहुत रेयरली होता है और उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बहुत होता है कि भाई स्टूडेंट को लगता है कि मैं 2 नंबर से फेल हुआ हूँ तो शायद मुझे बेनिफिट मिल जाए। अच्छा, इसमें एक चीज होती है, रीएवैल्यूएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मार्क्स बढ़ते हैं, घटते नहीं है। यस सर। ये क्या प्रॉब्लम है, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो यहीं पर तो सर बायसनेस आ जाती है ना सर, यहीं पर तो वो तो पता ही है कि बढ़ेगा, कुछ एक आध बढ़ेगा, और जब आप पुराने एग्जामिनी को रख लोगे साथ में बोर्ड में, तो सर हो सकता है पुराने एग्जामिनी के साथ दो नए एग्जामिनी जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं उनका कुछ टाई अप हो, कुछ हो, तो इसमें से बायसनेस का तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, तो ये सर मेरा यहाँ पूछना है, हाँ जी, मैं यहाँ ये पूछना चाह रही हूँ कि इन सब का निचोड़ क्या ये नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसको बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, साथ ही उसका जो मार्किंग स्कीम है, मार्किंग स्कीम को भी बहुत ही स्पेसिफिक अगर कर दिया जाए तो ये जो बायसनेस हो रहा है, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है सर? हाँ, देखिए, क्योंकि मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी में किसी एक पेपर में मान लीजिए 5000 लड़के स्टूडेंट अपीयर हुए, तो 5000 कॉपियां एक एग्जामिनर पर नहीं भेजी जा सकती। वो मैंने अगर 200 भी देंगे तो भी आपको 25 पे भेजना पड़ेगा। तो ये किया जा सकता है कि वो 2500 एग्जामिनर एक जगह बैठे, 1 घंटे 2 घंटे पूरे क्वेश्चन पेपर को स्टडी करें, एक मार्किंग स्कीम तैयार करें और उसको फॉलो करके सारे यूनिफॉर्म मार्किंग करें। तो ये सब हो सकता है, लेकिन कौन करता है? जी सर, मैं ये बताना चाहूंगी सर, आईसीएससी लेवल में जो +2 के एग्जाम्स होते हैं, आईसीएससी सीबीएसई, वहाँ का ऐसा होता है सर, बहुत स्पेसिफिक मार्किंग स्कीम भी बनता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। यहाँ पर सर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा सर, कि जैसे हमारी कुल्हान यूनिवर्सिटी है, यहाँ के बीएड के बच्चों के जब हम एग्जाम लेते हैं तो यहाँ एक नॉर्म सेट है, ट्रेडिशनल नॉर्म, पता नहीं पिछले 8 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि 90, 85 इससे कम नंबर देना ही नहीं, मतलब हम लोग जनरली सब देते हैं, और जो यहाँ के टॉपर्स होते हैं वो 92, 93 में चले जाते हैं बीएड में, और जो सबसे नीचे जो जाता है वो 78, 79। और हमारी यूनिवर्सिटी जैसे एएमयू वगैरह में सर, हमको याद है कि हमारे यहाँ जो टॉपर थी वो 71 में थी, और हम लोग सर 67, 68 पे हम लोग लटक गए थे सर। तो सर ये एक तरह का इम्पार्शियलिटी नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के लिए आप कहीं भी जाइएगा और अब जैसे कि सारा सिस्टम है तो उसमें तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पीछे हो जाएंगे, तो इसके लिए कोई एक कॉमन सेटिंग नहीं होना चाहिए कि इतना नंबर तक ही देना है या इस टाइप का? देखिए, फिर तो ये होने लगेगा कि भाई ऑटोनॉमी का क्या होगा, है ना? यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी, जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो ऑटोनॉमी का हम सहारा लेने लगते हैं। लेकिन देखिए, अगर ये चीज नहीं होती ना तो फिर कोई भी एम्प्लॉयर टेस्ट नहीं करता। टेस्ट इसलिए किए जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड वेरी करता है, इसलिए जो मार्क्स यूनिवर्सिटी देती है वो डिपेंडेबल नहीं है, और इसीलिए सारे टेस्ट किए जाते हैं। रिक्रूटमेंट की सारी कंपनियां टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं, ये तो वजह है। अगर यूनिफॉर्मिटी हो जाए, जैसा कि अब हम देख रहे हैं ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में शायद कुछ यूनिफॉर्मिटी आ जाए, तो हो सकता है कल को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जॉब के लिए बंद हो जाए, उसी के बेसिस पर रिक्रूटमेंट होने लगे, सिर्फ इंटरव्यू करे या रिक्रूट करे। नहीं सर, जैसे अभी सिस्टम आया है ना सर जीपीए वाला,
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब हम लोग जाते हैं तो पॉइंट्स होता है, तो उसमें दिखाता है कि 55 से 65 अगर है तो इतना पॉइंट आपको अलॉट किया जाएगा, 65 से 75 है तो इतना, 75 से 85 है तो इतना। तो वहां पर पॉइंट लेवल में इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। देखिए ये तो कल को तो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम वाला है ना, कल का प्रोग्राम में तो वही है। जी सर, जी सर, जी ग्रेडिंग। तो कल इसका डिस्कशन वहां करेंगे, इसकी प्रॉब्लम वहां डिस्कस करेंगे। ओके सर, ओके। अगर और किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, सो दैट वी कैन वाइंड अप द प्रोग्राम फॉर नाउ। ये हाँ सर, ये शिवान सर। हाँ समीरला सर, ये प्लीज पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। गुड आफ्टरनून। ये सर कल का जो आपका सेशन था उसमें हमने सुना आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि जो बच्चे इस लॉकडाउन पीरियड में घर में हैं तो उनके ऊपर बहुत मतलब बुरा असर पड़ रहा है ना। और वो लोग जो है जो 5 साल के बच्चे हैं वो 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। हाँ ये तो होगा, ऐसा मुझे ये डर है आगे हाँ। और ये चूंकि अब मेरा एक बेटा है, वो अभी 5 साल के आसपास का है, तो हम उसके अंदर देख रहे हैं ये चीज। हाँ बिल्कुल, तो मतलब हाँ उनके अंदर हम लोग देख रहे हैं, तो मतलब उससे निकलने का कोई उपाय सर? एक तो ये, और दूसरा एक तो सर ये है, और दूसरी बात ये है कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम की जो बात है, जैसे अभी हम लोगों के यूनिवर्सिटी में भी होगा एग्जाम, तो स्टूडेंट का लिया ही जाएगा, तो ऑनलाइन वैसा कोई उस तरह का निकला है या कुछ है हम लोगों के पास जिससे एग्जाम अच्छे से कंडक्ट कराया जा सके? वो देखिए ऑनलाइन ऐसे एग्जामिनेशन तो हो नहीं सकता। जी सर, हाँ है ना जी। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन ऑनलाइन कर सकते हो। कैसे? जी। कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाओ फॉर ए सर्टेन टाइम, और उतने टाइम में जो कैंडिडेट है वो रिस्पॉन्स दे दे और वो रिकॉर्ड हो जाए। कि बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो मॉक टेस्टिंग कर रही है ऐसी। तो एक तो ये चीज चल सकती है, मल्टीपल चॉइस एग्जाम हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि सर उसमें मल्टीपल चॉइस तो जो यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें तो सब्जेक्टिव भी रहता है ना सर? हाँ रहता तो है। केवल वो चीज ऑनलाइन नहीं हो पाएगी सब्जेक्टिव, नहीं हो पाएगी। और लेकिन एक चीज हो सकती थी अगर वो हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होती या हम कर पाते, वो है ओपन बुक एग्जामिनेशन। वो तो बहुत दिन से रिसर्च ही चल रही है उस पर, लेकिन अभी तक वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रही है सर। हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि उस सिस्टम के लिए रूटीन टाइप के क्वेश्चंस नहीं होंगे, फिर ऐसे सवाल नहीं होंगे जो किताब में से आदमी लिख दे। उसमें रीजनिंग होगी, आर्गुमेंटेशन होगा, माने रिप्रोडक्शन नहीं होगा बुक के उसका, अपनी सोच उसमें देनी होगी। और बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, आप किताब में देखिए, प्रिंसिपल आप देख सकते हो, और लेकिन एप्लीकेशन टाइप वो क्वेश्चंस हो, तो इस तरह की अभी ट्रेनिंग हमारे यहाँ नहीं है ये, और इतने बड़े एनरोलमेंट पर ये सब इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा। थैंक यू सर। अच्छा जी जी, थैंक यू। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कर दिया, एक इंस्टीट्यूशन में तो चल रहा है, दूसरे में इंटरनेट चला गया, तब क्या होगा साहब? जी सर। एग्जामिनेशन एक ही टाइम हो रहा है ऑनलाइन, लाइट चली गई, ये सब हजार चीजें। तो टेक्नोलॉजी के साथ अपनी प्रॉब्लम्स है, तो ये चीजें थोड़ा सा मुश्किल ही होंगी। तो अब देखिए आगे कैसे चलता है सिस्टम, कब तक ये कोरोना घेरे रहता है हम लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक यू हैव आंसर्ड टू मेनी क्वेश्चन फॉर टुडे सर। आज बहुत सारा हो गया, and thank you very much for the wonderful session that you have just conducted sir, and definitely we are very excited for tomorrow's session,
which we're going to talk about grading system and everything and like that. So thank you, sir. no, So all there the is a- participants, so we are here stopping for today, and definitely tomorrow at 11 o'clock we'll start the next session. And I request all the participants to join 15 minutes prior It's to about the given timing. development of And questions. I just going to paste the link of the feedback form. All the participants, please fill up the feedback form. You will not going to get any feedback form after the session is over for today, after we leave the meeting for today. Chauhan sir, thank you so much once again. Take care. Okay. Thank you, sir. हाँ मैम. सर कुछ बोलना चाह रहे थे. Yes, please. हाँ. हाँ सर बोलिए सर. चौहान सर. सर कुछ बोलना चाह रहे थे सर. नहीं, मैं ये कह रहा था कि कल का जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट आइटम्स पर है. Yes sir. Yes sir. Yes sir. कल वाला वो. ठीक है, ठीक. ठीक. Okay, then Okay. the timetable Thank for you, sir. tomorrow's and the topics related to for tomorrow will be given in the WhatsApp chat. And I hope everybody is satisfied and happy once they are exiting from this particular workshop. I once again, Chauhan sir, thank you very much, sir. Okay. And Bye. participant, if you have not filled the form, then please go on and fill it. Thank you, sir. Thank you, sir. Send a message to everyone here. Edit box. Out home. Button. Send a message to everyone here. Selected. Turn off microphone. शिवान सर, लगता है सभी ने फीडबैक फॉर्म फिलअप कर लिया है. हाँ मैडम, लगता है तो सबने कर लिया है, तो हम लोग भी निकलते हैं, है ना. और मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है. ओके सर. ओके जी. हेलो शिवान सर. मैं बाकी हूँ. हाँ मैडम बोलिए. भर रही हूँ feedback. हाँ भरिए ना मैडम.